In this video, I'm going to discuss about a new update on SWAYAM. This is very important for UGC NET paper 1. This question can be there in your next UGC NET examination. So listen this video till the end. Okay, all the best. Now we will talk about SWAYAM. This is a very important topic for UGC NET paper, right? All those who have given the exam, they know that what is SWAYAM? SWAYAM is an online learning platform. It is initiated by the Ministry of Education, Government of India. You should know this. You should also prepare the full form of SWAYAM. This is a UGC NET question. This question has been asked many a times, right? Then some of the key features include video lectures, downloadable reading materials, self-assessment tests, online discussion forums, proctored exams, and certification. You should know all these features also, right? With respect to SWAYAM, there are three cardinal principles of education policy: access, equity, and quality. ये तीनों principles आपको properly याद होने चाहिए. Many a times this question has also been asked on SWAYAM. Okay. Now further, let's talk about the national coordinators of SWAYAM, right? All of you know that there are 9 national coordinators of SWAYAM. Till now you have been preparing this, but अब जो नया update है regarding SWAYAM, इसको note down कर लो अच्छे से. The 10th national coordinator of SWAYAM is Institutes of National Importance. You have to prepare this because this can be your next UGC NET question, right? So these are other 9 national coordinators. AICTE, you should prepare the full form also, and you should know कि जो AICTE है ये किसके लिए है. It is for self-paced and international courses. Then CEC is there. Full form you must prepare. It is for undergrad education. Then IGNU is there. You must prepare the full form, and IGNU जहाँ पे आ गया we know it is for out of school students. Then IIMB full form you have to prepare management studies के लिए है. Then NCERT everybody knows it is for school education. Again I repeat, full form ज़रूर prepare कर लेना. NIOS, this is for school education, National Institute of Open Schooling. Then NITTR, focus upon NITTR, you should prepare the full form. This is for teacher training program. The next is NPTEL. This is for engineering programs. Then UGC, University Grants Commission. ठीक है, full form ज़रूर आपको आनी चाहिए. तो अब जो नया अपडेट है regarding SWAYAM, that is this is the 10th national coordinator for SWAYAM, right? तो अब 10 national coordinators आपने अच्छे से prepare करने हैं. And जो SWAYAM का सारा content है I have already covered in my book. This is my book, NT UGC NET Set GRF topic wise previous year solved papers with explanations book. इस book में जो last chapter है higher education system में, वहाँ पे 9 national coordinators with detailed explanation of SWAYAM given था. जो भी क्वेश्चंस आते हैं SWAYAM के रिगार्डिंग एवरीथिंग इज कवर्ड इन ऑन पेज 531. एंड ऑल दोज हु हैव गॉट दिस बुक, तो आप इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं. वहाँ पे जो 10th नेशनल कोऑर्डिनेटर है दैट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. ओके, let us understand what are these institutes of national importance. You should know the full form, right? So these are India's premier institutions of higher education. They are established by special acts of parliament. This is very important because this can be a statement type of question next time. There are 167 institutes. They play a very important role in developing highly skilled professionals. Highly skilled professionals जो हैं वो डेवलप होते हैं थ्रू दीज इंस्टीट्यूट्स, राइट? सो इन इंस्टीट्यूट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. डेवलपिंग हाईली स्किल्ड पर्सोनल. डेफिनेटली ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की, ये फोकस करती हैं ताकि एक पूल क्रिएट कर पाएँ ऑफ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. For what? For India's growth and development across various sectors. Okay. Then second इनका objective क्या है? Setting educational standards. इन institutes का ऑब्जेक्टिव है दैट दे शुड सेट सच स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम बेंचमार्क्स भी कहते हैं फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, राइट? ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाएं जिससे एजुकेशन में एक एक्सीलेंट क्वालिटी जो है वो आए, राइट? प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन. यस, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ INIs is focus upon research and innovation so that there is advancement in the various fields. Then fourth, जो last objective है इनका, that is national integration.
by attracting students from diverse regions. जगह जगह से जब ये students को attract करते हैं, then definitely INIs help in promoting national unity and understanding. Fine. So as a national coordinator of SWAYAM, INI will offer courses from select INIs. There are 167 institutes which are regarded as institutes of national importance. ठीक है, ये सारी information जो है I have already covered in my book regarding institutes of national importance, so you can cover that also from book. इनकी detail जो है वो book में already given है with names also given in the book. Okay, so you must prepare this also from the book itself. It will be easier for you to prepare from the book. आई होप आपने अपनी बुक में इस चीज़ को अपडेट कर लिया होगा, द 10th नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं, राइट. सो फ्रॉम दिस बुक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड स्वयं, पूरा डिटेल में जो टॉपिक है एक्सप्लेन किया हुआ, कवर अप किया हुआ इस बुक में. स्वयं आपने प्रिपेयर कर लेना है. देन स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा सारा का सारा टॉपिक जो है एज पर 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन थे यूजीसी नेट एग्जाम के, उनके अकॉर्डिंग जो पूरा स्टडी मटेरियल जो कंटेंट बनता था स्वयं प्रभा टॉपिक के ऊपर, वो सारा जो है इस बुक में ऑलरेडी कवर्ड है, फुली डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, राइट. सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. कोई भी क्वेश्चन आपको इस बुक में से बाहर से नहीं आएगा स्वयं प्रभा के रिगार्डिंग. देन स्वयं प्लस. स्वयं प्लस वाज अ न्यू टॉपिक, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल द न्यू टॉपिक्स इन दिस बुक. स्वयं प्लस के ऊपर जो भी कोई नया क्वेश्चन आएगा दैट विल बी देयर इन दिस बुक, सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. या तो आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कह सकते हैं, या ये हायर एजुकेशन सिस्टम, in both the units they are being covered. Okay, so these are very important topics. स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, इन तीनों टॉपिक्स में से डेफिनेटली 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ओके, राइट. तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस बुक, कि ये जो बुक है आपको कैसे बेनिफिशियल रहेगी. इवन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड पेपर 1, आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग हैं या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी बाय किया हुआ है, देन ऑल्सो दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. इस बुक में 2014 से लेकर 2023 तक, दैट मीन्स 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पेपर 1 के, वो टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट किए हुए हैं एंड यूनिट वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं, राइट. और बुक में स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस नए एडिशन में सारा कुछ कवर किया है, राइट. सो ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे थे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, राइट. देन ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे 2023 में. तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो वो कंटेंट है, दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन इन अ वेरी इलैबोरेटिव फॉर्म. जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत इलैबोरेटिवली दी हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस क्वेश्चन को ही समझाया, नो, उस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप किया है. फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी हैज बीन कवर्ड वेरी नाइसली. देन अब स्वयं प्रभा था एक ट्रेंडिंग टॉपिक. इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, स्वयं प्रभा एक ऐसा टॉपिक था जिसके क्वेश्चंस जो हैं 8 to 10 शिफ्ट्स में आए थे 2023 यूजीसी नेट फाइनल एग्जामिनेशन में. तो स्वयं प्रभा के जितने भी क्वेश्चंस इन शिफ्ट्स में आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन. ट्रेंडिंग का मतलब ये है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर हो गया या ज्ञान पे आजे जो है, ये इनका एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है. एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड ओवर है. Giving you more such examples, important and trending topics का क्या मतलब है? If I talk about research aptitude में validity जो topic है, उसके ऊपर बहुत सारे questions आए हैं different shifts में. तो वो पूरा का पूरा topic जो है fully elaborated जो है इस new edition में, third edition में cover up किया गया है. Then इस बार इन्होंने research aptitude में statistics के questions बहुत पूछे थे related to p value, correlation, regression, dispersion, skewness के regarding. वो सारा जो content है वो इस न्यू एडिशन में इंक्लूड किया गया है, राइट. देन प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया,
APA स्टाइल हो गया, या कोई भी एब्रिवेशंस हैं जो एकेडमिक राइटिंग में यूज़ की जाती हैं, वो मैंने सारी एब्रिवेशंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप की हैं. देन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, इस बार इन्होंने बहुत सारे नए टर्म्स जो हैं वो ट्रेंडिंग थे. फॉर एग्जाम्पल डायलॉजिक कम्युनिकेशन, देन वेस्टर्न कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे या क्वेश्चंस कह सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन. मेटा कम्युनिकेशन हो गया, जो ऑलरेडी थे वो सभी को पता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल, दैट एवरीबडी नोज. ठीक है, जो ट्रेंडिंग, जो इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो सारे जो हैं इस नए एडिशन में कवर अप किए हैं. विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, I have incorporated some quick formulas related to compound interest, simple interest, so that you can solve your questions very quickly on the final day. Then logical reasoning mein, with God's grace, the content has been covered in such a way in the new edition of the book that you will be able to correct 100% out of 5 questions which will be there in logical reasoning. 4 questions आप 110% सिर्फ इस बुक का कंटेंट कवर अप करके you will be able to do. Whether you are इन्वॉल्व इन एन ऑनलाइन कोर्स, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई आपने ऑनलाइन कोर्स बाय किया है, सो दिस बुक विल बी वेरी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे थे इस बारी, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे कॉनोटेशन, डेनोटेशन ऑफ टर्म्स के ऊपर, दैट हैज बीन कवर्ड इन द न्यू एडिशन. देन वैलिडिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ हो गया, देन फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, सारी जितनी भी फॉर्मल फैलेसीज हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, विद देयर एग्जाम्पल्स, दे हैव बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन, राइट. देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व किए हैं इस न्यू एडिशन में. प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सेपरेटली प्रॉपरली डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किए हैं न्यू एडिशन में, right. Then data interpretation के regarding you can practice lot of questions from this book from 2014 से लेकर 2023 तक. सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है, या मिसिंग फिगर DI है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं. सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. प्लस हर एक DI जो है फुली एक्सप्लेन्ड है, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर. फॉर ICT में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे हिरार्की वाला क्वेश्चन जो है, मेमोरी हिरार्की वाला, या जो टर्म्स हैं ICT में, again and again NT is placing you the terms related to ICT. वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो सारा कुछ कवर अप किया गया है. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या टर्म्स हैं ICT के, या एब्रिवेशंस हैं फ्रॉम 2014 टू 2023, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हर एक चीज़ इस न्यू एडिशन में कवर अप की गई है. और जो न्यू टॉपिक्स हैं लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बुक. इस बार इन्होंने कुछ नए टर्म्स पूछे थे, ट्विनिंग, मॉर्फरिंग, वो सारी कुछ जो हैं, वो सारी टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं. देन कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू in ICT. Conversion of number system, that has also been included in this new edition. If I talk about people and environment में जितने भी important topics हैं या जो trending topics I must say with respect to persistent organic pollutants, VOCs के ऊपर अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन है, मिथेन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप हैं. ओजोन लेयर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, एंड सेपरेटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट के, प्रोटोकॉल्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, या SDGs, MDGs, all that content has been covered in this new edition. Then with respect to unit 10, that is higher education system, ancient education system के regarding, commissions, education commissions are highly important for you. National education policy 2020, इसका separately जो है content is available in this book, and questions भी NEP 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, that all has been included in this book. So all those who want to buy this book, you can get it from Amazon. The link of that Amazon has been given in the description box. You can go to that link and order this book, and you can quickly prepare your paper 1 within few days, or you can WhatsApp your query on the given number in the description box below.
you can order this book from Amazon or Flipkart. I will provide the link of Amazon and Flipkart in the description box of this video below. And if you have any query, any doubt, kuch bhi aapke mind mein, you can always WhatsApp me at this number, that is 9750000491. Thank you so much for watching this video, and do update and prepare content thoroughly for these important topics, Swayam, Swayam Prabha and Swayam Plus. Okay, take care.